जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय सुमन आंटी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। गुरु जी की प्यारी बेटी, कोई गलती होवे तो माफ करना। गुरु जी दे मंत्र जापना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी बेटी गुरदासपुर तो। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी मैनू कल मैनू एक गुरु जी ने सत्संग राही दस्या कि पुत्तर तेरे ना पुत्तर दी ना मैं पुत्तर ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਤੰਗ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਲਾ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਣਵਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਲ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬ੍ਰੈਸਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੀਸਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਲ ਜੀ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਬਾਬਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੂੰਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਾਲਕੋ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਬਸ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਐਸ਼ ਹੀ ਐਸ਼ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਲਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤਾ ਮੇਰਾ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਤੀ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 2 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ। 2:17 ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ 18 ਮਾਰਚ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਡਈ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ। ਰਹਿ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਟੀ 6:53 ਹੋਏ ਆ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਬਲ ਜੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ 2:15 ਵਜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਵੀ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਆਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਲਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਡਰੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਪਈ, ਡਰਨਾ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਚਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨੇ, ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, 1st ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਬਾਬਲਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਚੰਗੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਖੇਡੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ, ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਲ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना। सुमन आंटी आपका भी लख लख वारी शुकराना। मेरा सत्संग जरूर शेयर करो। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी साथ संगत जी को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी करेंगे कल्याण। संगत जी, एक बार एक व्यक्ति गुरु जी के पास आया और बोला, गुरु जी मेरे पर अपनी कृपा कर दो। गुरु जी बोले, बता क्या चाहिए। वो बोला, गुरु जी आप मेरा हाथ पकड़ लो। गुरु जी ने अपना हाथ आगे कर दिया और बोले, ले पकड़ ले मेरा हाथ। उसने गुरु जी का हाथ पकड़ने से मना कर दिया और बोला, गुरु जी आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपका साथ चाहता हूँ, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। गुरु जी हंसकर बोले, अरे इसमें क्या फ़र्क है। वो बोला, गुरु जी हो सकता है कभी अच्छे बुरे समय में, अज्ञानता में मैं आपका हाथ छोड़ भी दूँ, लेकिन गुरु जी अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो फिर बुरा समय तो कभी मेरा ज़िंदगी में आएगा ही नहीं। गुरु जी मुस्कुराकर बोले, जा ऐश कर। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु जी। हाँ जी संगत जी, गुरु जी को अपना हाथ पकड़ा दो कि गुरु जी आप हमारा हाथ पकड़ो, हम तो नादान बच्चे हैं, कभी भटक भी सकते हैं, छोड़ सकते हैं आपका हाथ। तो संगत जी, गुरु जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि केवल और केवल अपने कर्म चंगे रखो, केवल अपने ऊपर ध्यान दो। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर अपना फोकस बिल्कुल मत डालो। संगत जी, गुरु जी आपसे बात करना चाहते हैं और बात करते हैं गुरु जी सत्संग के माध्यम से। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे आ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉजिटिव सत्संग ही शेयर हो रहे हैं जिनमें केवल और केवल पॉजिटिव बातें हों, है ना। थोड़ी बहुत बातें अगर जरा मरा सी हो भी जाती हैं तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ सत्संग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो उन्हें यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है ना। क्योंकि अरदास गुरु जी से गुप्त तरीके से पर्सनली कनेक्शन बना के, डायरेक्ट कनेक्शन बना के करनी चाहिए, है ना। तो संगत जी, जो भी आपकी अरदास है आप गुरु जी के चरणों में रख दीजिए। आप कमेंट में भी गुरु जी के चरणों में रख सकते हैं, नहीं तो आप गुप्त तरीके से अपनी अरदास को कहिएगा। यहाँ पर आप अपना शुक्राना कीजिएगा कि गुरु जी ने आपके क्या कष्ट काटे, कैसे कष्ट काटे, अपना अनुभव शेयर कीजिएगा, उन घटनाओं का वर्णन कीजिएगा जो गुरु जी ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, आपके यदि सत्संग हैं तो आप अच्छे से क्लियर वॉइस में, थोड़ी ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरु जी करेंगे कल्याण। और यहाँ पर केवल अपने ब्लेसिंग्स वाले ही सत्संग शेयर कीजिएगा। संगत जी, आपकी जो भी अरदास है, अरदास वाले सत्संग यहाँ पे मत शेयर कीजिएगा। अरदास आप यहाँ पर जब सत्संग सुन रहे हैं आप अपने मन में कीजिए, आप अपने मन में कीजिए। गुरु जी आपकी बहुत जल्दी अरदास पूरी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव सत्संग सुनने को मिल रहे हैं गुरु जी के हुक्म से। जो गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी से मैसेज दिया वो सत्संग आज आपके पास पहुँच रहे हैं। और गुरु जी आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि चंगे कर्म करो और हाथ गुरु को पकड़ा दो, है ना। तो संगत जी, और भी बहुत कुछ है गुरु जी के खजाने में आप सब के लिए,
तो सुनते रहिए सत्संग और लेते रहिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स। गुरु जी करेंगे कल्याण। जय गुरु जी। और जो भी संगत जी लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, गुरु जी उनकी खूब खूब खुशियों से झोलियां भर रहे हैं। विश्वास के साथ सत्संग सुनिए और पूरा सत्संग सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा संगत जी। और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपकी सेवा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से शकुंतला पांडे बोल रही हूँ। आज का अपना शुक्राना सत्संग ले करके अपने गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करती हूँ। सर्वप्रथम गुरु जी का कोटि कोटि नमन, प्रणाम गुरु जी। गुड मॉर्निंग गुरु जी। संगत जी को गुड मॉर्निंग और सुमन जी आपको भी गुड मॉर्निंग। सर्वप्रथम गुरु जी के पावन चरणों में महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, नई सुबह देने के लिए, नई सांसें देने के लिए, एक नई सुबह हमें बख्शने के लिए, नया घर देने के लिए, भोजन देने के लिए, स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, अति सुंदर कपड़े देने के लिए, रोज़ नई नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए, रोज़ नया हमारी ज़िंदगी में नए नए हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ सिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल मैं संगत जी कहीं गई हुई थी, क्योंकि अक्सर मेरा काम से जाना आना लगा रहता है, तो काफ़ी देर बाद लेट हो गई। मैं घर से ही लेट निकली थी, लेकिन जो गुरुजी द्वारा बोला गया था कुछ उपायों के लिए देर उसके लिए हुई कि काम का तो चलो कोई बात नहीं, अगले दिन हो जाएगा, उस टाइम नहीं हो सका। लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य जो गुरुजी ने कुछ नए जो अपने गुरुजी ने बताए थे उपाय करने के लिए मंगलवार के दिन, वो ज़रूर हुए। वो गुरुजी की कृपा से सारे उपाय जो उन्होंने बताए थे वो मैं करके आई। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने ये एक
सब काम छोड़ करके फिर इन उपायों को कि जिसकी वजह से हमें जो कष्ट, जो पितृ दोष और बहुत कुछ जो गुरुजी बताते हैं कि इन उपाय करो पितृ दोष का, नज़र का, तो वो मैं कल जो है करके आ गई। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये भी एक जो कई दिनों से टाल रहे थे कि आज करूँगी, कल करूँगी, आज जाऊँगी, कल जाऊँगी, वो करके आ गए। लेकिन अभी भी कुछ बाकी हैं जो शनिवार को करने हैं। तो उसके लिए गुरुजी मुझे आज्ञा दें तो मैं शनिवार को जो बाकी बचे हैं वो भी मैं करके आ जाऊँगी। इसी के साथ में मैं अपने ये अमृत बेला का शुक्राना सत्संग से आज्ञा लेती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग कल का आने के लिए आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ। मैं अपने गुरुजी से भी और संगत जी से भी और सुमन जी से भी। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना है जो उन्होंने मुझे ये दात बख्शी है अमृत वेला की। रोज़ भगवान उठा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए। अब मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुपा। अपनी संगत से भी मैं क्षमा चाहती हूँ और सुमन जी आपसे भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुबा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुबा सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुबा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। श्वासोश्वास शुक्राना मेरे गुरुबा। संग जी, सुमन आंटी जी का भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना और संगत परिवार का भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुबा। संगत जी, गुरुबा ने कहा था कि तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है तो 17 दिन का शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर संगत जी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं नहीं कर पाती थी, उठ नहीं पाती थी। लेकिन संगत जी सोमवार को और 17 तारीख को मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि आज 17 तारीख है। 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुबा ने मुझे दी और गुरुबा ने खुद मुझे उठाया और मैंने शुक्राना सत्संग अपना शेयर किया। अपने ये मेरे तीसरे दिन का शुक्राना है। तो शुक्राना सत्संग करवाने के लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी और सुमन आंटी जी का भी बहुत बहुत अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। उनको बहुत अच्छी हेल्थ और वेल्थ सब कुछ ब्लेस करना मेरे गुरु पापा। मैंने अपना सत्संग सुना। सुमन आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरा सत्संग शेयर किया और संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। और गुरुपा सबको खूब खूब ब्लेस करे, खूब सबकी परेशानियाँ, सबके दुख दर्द सब दूर करे मेरे गुरु पापा जी। जैसे मेरे दुख दर्द दूर कर रहे हैं, हर घड़ी हर पल अपने होने का एहसास दिलाते हैं संगत जी। कल जब मैं बाहर निकली तो छोटी सी तितली हमेशा यहीं आसपास ही रहती है। तो गुरुपा मुझे एहसास करवाते हैं कि मेरी बच्ची, मैं हर घड़ी हर पल तेरे साथ हूँ।
यही हूँ। और जब मैंने दूसरी साइड नीचे को देखा तो वाइट कलर की, वाइट येलो कलर की इतनी सारी बटरफ्लाई नीचे से ऊपर आ रही थी। तो मैंने गुरुपा से कहा, जो मैं काउंट कर रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 11 12, उफ पता नहीं कितनी सारी आ रही। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, अच्छा मेरे गुरु पापा जी, आज तो आपने मुझे इतना ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया। तो जो कबूतर मुझे रोज़ दिखते थे, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे। तो मैंने कहा, गुरुपा जी आज आप कहाँ हो? तो बोलते ही, जैसे ही मैंने बोला, तो इतने सारे कबूतर ऊपर से उड़ते हुए, मेरे ऊपर के से उड़ते हुए, और एक बहुत बड़ा सा बाज बाज भी था, तो जो मेरे ऊपर चक्कर खा रहा था संगत जी। तो गुरुपा ने ऐसे एहसास दिलाते हैं कि मेरी बच्ची टेंशन ना ले, मैं हर घड़ी हर पल तेरे साथ हूँ। संगत जी, अब मुझे डर नहीं लगता। कुछ भी होता है, एहसास तो होता है कि सपने में आके गुरुपा मेरा कष्ट काट रहे हैं। लेकिन आज भी सपने में कुछ दिखा था कि बारिश हो रही थी और पता नहीं क्या था, पर मुझे याद नहीं है। अब अगर कल याद आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी संगत जी। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है संगत जी। मुझे बहुत दिनों से ये मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे के अंदर बीमारी पनप रही है, तू ये सत्संग सुन, सत्संग सुन। तो मैं सत्संग तो सुन रही थी। जब मैंने अपने बच्ची को पूछा तो उसने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन आज उसने कहा कि मम्मा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो संगत जी, मुझे थोड़ी सी टेंशन तो हुई। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, गुरुपा ने बोला है वो खुद सब कुछ संभालेंगे, तो ये भी ठीक हो जाएगी। तो अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी नातिन की तरफ से भी शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। इसका उसकी ये बीमारी ठीक कर देना गुरुपा। पापा जी, कैसे ठीक करनी है, क्या करनी है, वो भी आप जानो। आपके ऊपर सब कुछ स्टैंडर्ड कर दिया है गुरु पापा। आपने कहा था कि तेरा बेटा कष्ट में है, ये सत्संग सुन। उस बहुत भारी कष्ट आया हुआ है, आज उसके लिए बहुत भारी दिन है, आज उसके लिए। तो मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, मुझे पता नहीं था। फिर गुरुपा ने कहा कि मैंने उसे नई जॉब लेस कर दी है, देती है, तू टेंशन क्यों लेती है? तेरा बेटा तेरा बेटे के साथ मैं हर घड़ी हर पल हूँ। तो संगत जी, मुझे बहुत खुशी होती थी। मुझे पता नहीं था कि गुरुपा ने उसमें उसको जॉबलेस कर दी थी। तो जब मैंने उसको फ़ोन किया, बात की, तो उसने मुझे बताया कि हाँ, मैंने नई जॉब ज्वाइन कर ली है, और ऐसे ऐसे मैंने ज्वाइन कर लिया है और यहाँ ज्वाइन कर लिया है। तो संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने गुरुपा से मन ही मन बहुत बहुत शुक्राना किया। अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, उसकी तरफ से भी बेअंत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। ऐसे ही हर घड़ी हर पल अपने बच्चों के साथ रहना गुरु पापा। आप इनको भी अपनी संगत बना दो गुरु पापा। हमारा सारा परिवार आपकी संगत बन जाए और हम जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर आए गुरु पापा जी। ऐसा कुछ चमत्कार कर दो मेरे गुरु पापा जी। संगत जी, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा, कुछ भी मुझे बोलने में कोई भी मैंने गलती करती हो तो उसके लिए क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना। तो यहीं मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी। जय गुरु जी। सात संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज दिन बुधवार, समय 5:41, दिनांक 19 मार्च है। गुरु जी, आपके बहुत प्यारे प्यारे पॉजिटिव सत्संग सुने। सत्संग में
मैसेज था कि बेटा तू बहुत स्ट्रांग है, आज फिर तू मेरी परीक्षा में पास हो गई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी परीक्षा में पास करने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा। फिर आगे आपका मैसेज था कि बेटा तेरे सिर पर मेरा हाथ है, तू तो कोई मामूली इंसान है ही नहीं। मेरी ब्लेसिंग हर समय तेरे साथ है, हर मुश्किल में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। सिर पर मेहर भरा हाथ रखने के लिए गुरुजी, हर मुश्किल के समय साथ खड़े रहने के लिए गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे हर आंसू को मोती में बदलने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरे सत्संग में कहा गया था कि अमृत वेला में मंत्र जाप के बाद एक फल सेब खाना है। वो मेरा ब्लेसिंग प्रसाद है। ब्लेसिंग नाल तेरे परिवार दा कल्याण हो जाएगा। गुरुजी जरूर मैं एक फल सेब खाया करूंगी। गुरुपा आप इसी तरह गुरुजी परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुपा बड़े मंदिर जरूर बुलाइएगा गुरुजी, हम तो आपके दर्शन करना चाहते हैं गुरुपा। आगे मैसेज था कि तू तो बहुत भोली है, गुड न्यूज़ ब्लेसिंग देने आया था, परंतु मुझे पहचानती ही नहीं है। गुरुजी मैं तो आपके दर्शन करना चाहती थी, मुझे पता भी नहीं चला गुरुजी कि आप किस रूप में आए थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी आपसे बातें करने का बहुत दिल कर रहा है, पर सत्संग बड़ा होने के कारण से मैं सत्संग को आपकी आज्ञा से यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए माफी चाहूंगी गुरुपा। सुमन आंटी जी और सारे साथ संगत जी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सारी गुरु प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 3-4 महीने पहले ही शुरू हुई है, लेकिन मेरा और गुरु जी का साथ जन्मों जन्मों का है, युगों युगों का है। आज का मेरा सत्संग ये है कि मेरी बेटी मेरी जेठानी की बेटी है, वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रही है। पहले उनकी एक बेटी बीमार हुई, फिर अब दूसरी बेटी बीमार हो गई और अब वो खुद भी बीमार हो गई। तो गुरुजी से मैंने अरदास लगाई कि गुरुजी क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है और बीमार होती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ बेटी का नाम काव्या है, काव्या को ठीक कर दो गुरुजी। अब मैंने गुरुजी का चंदन टीका और उसको जल प्रसाद भी दिया और उसको मेडिसिन जल प्रसाद के साथ ही दी। और अब धीरे धीरे उसकी काव्या की मतलब मेरी बेटी की वो रिकवरी हो रही है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सुबह उठी तो ये मेरा मंगलवार का शुक्राना है। तो
मैं जब उठी तो मंगलवार था, शीतला माता के वो दिन शुरू हो रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो शीतला माता जाते हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि शॉप पे देर हो गई है। अपनी बेटी को बोला तो वो भी इनकार कर गई, नहीं मुझे सोना है। तो मैं आ गई गुरुपा के पास और आंखों में आंसू आ गए। गुरुपा, क्या मैं अकेली जाऊं? गुरुपा, मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है। इतने में मेरी बेटी ने आवाज़ लगाई, मम्मा मैं चलती हूँ। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं और मेरी बेटी शीतला माता गए। गुरुजी हमें शीतला माता ले गए। वहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरह से पूजा अर्चना की, बहुत अच्छे तरह से। फिर नीचे सदाशिव महाराज का मंदिर है, वहाँ हमने जल चढ़ाया। इतने में वहाँ एक साधु बाबा आ गए, वो हमसे बात करने लगे। फिर मैं कुछ दक्षिणा उनको दी, उन्होंने हमें प्रसाद दिया। फिर इसके बाद हम काली माता के मंदिर चले गए और वहाँ भी हमने जल वगैरह चढ़ाया और पूजा अर्चना की। काली माता से अरदास की कि अगर मेरे घर में कोई भी तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक है उसे काट दो माता। ये सब थॉट मुझे गुरुजी ने ही दिए हैं, क्योंकि गुरुजी बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शीतला माता जाओ, काली माता जाओ। वहाँ पे चुनरी चढ़ाने के लिए बोला हुआ है, लेकिन आज लेट हो गई तो चुनरी नहीं चढ़ा पाई। अब अगले मंगलवार को मैं ज़रूर चढ़ाऊँगी, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम लोग थोड़ा ऊपर चले गए तो मेरी बेटी कहती मैंने फ़ोटो खींचनी है, वो चली गई फटाफट फ़ोटो खींचने के लिए अकेली। और मैं एकदम से डर गई, उसके पीछे पीछे गई और देखा 3-4 वाइट कलर की बटरफ्लाई उसके ऊपर उड़ रही हैं। तो मुझे लगा कि गुरुजी उसकी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमारे साथ हमेशा रहना, अंग संग रहना गुरुजी। आपके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। बस ये जीवन, बस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दे देना। मुझे मोक्ष चाहिए गुरुजी, इसी जन्म में मोक्ष चाहिए बस गुरुजी। जय हो गुरुजी। सुमन आंटी जी, गुरुजी आपको खूब खूब ब्लेस करे। गुरु प्यारी संगत जी आपको भी खूब खूब गुरुजी ब्लेस करे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी का कितना शुक्राना करूं ये शब्दों से परे है। हाँ, हमारी ज़िंदगी में मैं सच में नहीं बोल सकती कि हम उन टाइम्स में रह रहे हैं जहाँ पे हम सीधा एक भगवान ईश्वर के साथ रूबरू हैं। तो समझ पाना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुरुजी आपको ऐसे ऐसे हेल्प करते हैं कि मतलब शब्दों में शुक्राना या लाख बार करोड़ों बार शुक्राना करना भी कम पड़ जाएगा। तो बेसिकली गुरुजी तो आपकी लाइफ के हर स्फीयर को, हर हिस्से को इफ़ेक्ट करते हैं, इन द सेंस ब्लेस करते हैं और हर एक में अपनी छाप छोड़ते हैं। तो चाहे वो ऑब्वियसली हेल्थ से शुरुआत होती है कि पहले वो हेल्थ ब्लेस करते हैं। आपके पास हेल्थ होगी तो आप आगे कुछ और कर पाओगे। आपके रिलेशनशिप्स और फिर आपकी जॉब, आपके फाइनेंसेस, गुरुजी सब कुछ ही देखते हैं। पर जो गुरुजी की गाइडेंस है वो मतलब उसका कोई जवाब नहीं। तो जैसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं और उनके इतने बड़े बड़े मायने हैं कि आप सोचते हो कभी कभी कि यार
मुझे इतना भी नहीं पता चल रहा, मतलब गुरुजी ऐसे आपके साथ रहते हैं जैसे कोई फैमिली मेंबर आपके साथ ही रह रहा है, बैठा हुआ है, चल रहा है, उस तरीके से वो बातें करते हैं, उस तरीके से वो आपको गाइड करते हैं। तो जैसे ये इन पर्टिकुलर मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी के अचानक मुझे मैसेजेस आने शुरू हुए कि ये मेरे फैमिली मेंबर्स को लेकर ही है जो मेरे साथ रह रहे थे यहाँ दिल्ली में। वैसे तो मैं अकेली रहती थी, बट फॉर सम टाइम वो लोग मेरे साथ रहे थे, रिलेटिव्स और ये सब। तो किसी एक रिलेटिव को लेकर है ये हाँ, सत्संग। और नाम नहीं मैं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगी, रिलेशनशिप भी नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगी मैं। देखो, घर में 100 बातें होती हैं अगर कोई आपके साथ रह रहा है, आपका फैमिली मेंबर, तो आप ऑब्वियसली उनके सामने ही सब कुछ करोगे। और मुझे ऐसे मैसेजेस आने शुरू हो गए गुरुजी के कि तू बहुत भोली है और इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये तेरा एक फ़ायदा उठाएंगे। और तो मेरे को समझ ना आए कि ये किस चीज़ के लिए गुरुजी बोल रहे हैं कि नीयत ठीक नहीं है या मैं बहुत भोली हूँ। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जैसे उस टाइम पे मैं लिखती हूँ, शुरू से ही लिखती हूँ बहुत देर से। 8th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने शायद लिखना शुरू किया था, पोएम्स वगैरह लिखा करती थी तब। और फिर धीरे धीरे वो पोएम्स भी लिखी, और जो कि कभी छपा नहीं पाई। कभी तो ऐसा मन में था नहीं छपाने का, बट छाप सकी भी नहीं, उसको नहीं छपाया मैंने। पोएम्स की बात नहीं कर रही, बट बुक्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे गुरुजी का मैं शुक्राना इसलिए करना चाहूँगी कि मैं कहती हूँ आप ईश्वर के रूबरू कैसे हो। लाइक it's very amazing, it's very surprising, and it's very miraculous. I mean, the complete feel of it, the complete जो एहसास जब आपको होता है, बिकॉज सी गुरुजी knows each and everything whatever you are doing, like. And in my case, Guruji communicates through messages, and messages are very one to one. Like, they are not general messages which you would receive कि कल्याण कीता या which are applicable to most of the situations. So we might wonder कि ठीक है, ये तो messages ऐसे आते हैं तो मेरे सामने भी आ गए। So not that way, बट जैसे ये गुरुजी ने बोलना शुरू किया, मैंने डीपली थोड़ा देखना शुरू किया कि कहाँ मैं भोली हूँ या क्या, मतलब नीयत ठीक नहीं है। एंड बिकॉज़ आप नहीं समझ पाते, बिकॉज़ उसी टाइम पे मेरा इतना मेजर ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ था कैंसर का। तो आपको लगता है कि आप इतनी मुश्किल में से तो निकले हो, तो अभी कौन और क्यों आपका फ़ायदा उठाना चाहेगा? किसकी नीयत ठीक नहीं है और क्यों ठीक नहीं है? ऐसी क्या बात है? तो गुरुजी के बताने से, मुझे सिर्फ़ एकमात्र बोलने से ही, कि उन्होंने मुझे इस लाइन को बोल के प्रेज़ेंट करवा दिया। आप अपना बिहेवियर देखना शुरू करते हो ना, आप दूसरे बंदे का जो आपके साथ रह रहा है उसका देखते हो, तो आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि हाँ, आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और गुरुजी बार बार बोली जा रहे हैं कि जो इस युग में यानी कलयुग में मुंह का मीठा है, वो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा वेल विशर है।
तो अ, ऐसे ही बार बार गुरुजी ने बोलकर मेरे को सतर्क किया। फिर जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं लिखती हूँ, तो मैंने कुछ लिखना शुरू किया था नया। तो ऑब्वियसली अब आप इकट्ठे रह रहे हो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, और 1 BHK में रह रहे हो यहाँ दिल्ली में, तो आप अगर लिखोगे तो दूसरे बंदे के सामने ही लिखोगे। तो मतलब इतना वो तो नहीं, क्योंकि जैसे गुरुजी ने ऐसे ही टोकना शुरू कर दिया, तो और मेरे को उस तरफ उन्होंने प्रेजेंट कर दिया ना, मतलब कि मैं थोड़ा सा मैंने ही देखना शुरू कर दिया कि मैं मतलब क्या बोलती हूँ जो भोलेपन में जिसका दूसरा फ़ायदा उठा पाएगा। तो मैंने रियलाइज़ किया, जैसे मुझसे बड़े प्यार से पूछा गया कि क्या लिख रही हो, तो तभी गुरुजी का बड़ा क्लियर मैसेजेस कि ये जो भी तू कर रही है, जो लिख रही है या जो भी तू कर रही है, अगर ये इन लोगों को बता देगी तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैंने वही फिर गौर किया कि मुझसे पूछा इतने प्यार से जाता है कि क्या कर रहे हो, तो मैं बता दूंगी कि हाँ मैं तो लिख रही हूँ। तो मैंने नई बुक लिखना शुरू किया है। फिर वो धीरे धीरे बात, हमारे घर में ऐसे ही होता है, और मुझे शुरू से बड़ा अजीब सा लगता था कि चीज़ कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती। शुरू करो सारी रिश्तेदारियों में फैल जाती है, सबको पता चल जाती है, ना कोई चीज़ ख़त्म होती है, ना वो संपन्न हो पाती है, ना वो किसी जैसे पंजाबी में कहते हैं सिरे चढ़ पाती है, और बीच में ही वो ख़त्म हो जाती है। और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो कैंसर ट्रीटमेंट में मैं ऑब्वियसली जिसको ये बीमारी हो वो हर इंसान उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ता है, ये वो मतलब थोड़ा सा आप उस डायरेक्शन में भी जाते हो। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ना क्या शुरू किया, सारी रिश्तेदारी में यही बात मैं शुरू हो गई कि मैं तो अब न्यूट्रिशनिस्ट ही बन जाऊंगी, मैं अपना करियर छोड़ दूंगी, अब मैं यही करूंगी आगे। मतलब मतलब मैं बता नहीं सकती कि आपका सांस लेना भी मुश्किल है, कि अगर आप सांस भी लोगे तो भी उसको शायद नापा तोला जाएगा। कोई भी चीज़ आप ऐसे फीलिंग आती है कि आपकी ज़िंदगी तो अपनी है, पर कोई भी चीज़ आप फ्रीडम के साथ नहीं कर रहे। तो यही मैं ऐसे लिख रही थी बैठी, क्योंकि फिर मैंने बिहेवियर ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि वही मुझसे तो बड़े प्यार से पूछा जा रहा है कि आप बड़े एक्साइटेड होके जवाब दोगे, और जब आप जवाब दोगे तो आपके आगे सारे मासी चाचे ताए बुआ उनके बच्चे, फर्स्ट कज़न सेकंड कज़न्स थर्ड कज़न्स, और ना जाने कितना बड़ा कुटुंबा 50-100 लोगों तक बात पहुंच जाएगी। सिर्फ पहुंच ही नहीं जाएगी, दिन रात वो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। तो जितने फ़ोन कॉल्स होंगे वो उस पर यही डिस्कस किया जाएगा। और गुरुजी मेरे केस में लेकर इसके बहुत अगेंस्ट रहे हैं। रादर गुरुजी की मैसेजेस की वजह से मैंने अपना थोड़ा सा चीज़ें शेयर करना बंद किया, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया, जैसे गुरुजी का मेरे को एक बार मैसेज आया था कि चीज़ां 10 दिन दियां सारियां नो फिर नज़रां लगदियां आ। तो ये तब हुआ कि मेरी भाभी को कुकिंग का शौक़ था, और मैं यहाँ दिल्ली में गुड़गांव में कुकिंग कोर्सेस किया करती थी। तो मैं जाकर बताती थी कि ताकि ये बोलकर कि तुम भी यहाँ आना और वो कोर्सेज करना, बड़े अच्छे कोर्सेज हैं। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा वो कुकिंग कोर्सेज में जाने को ही दिल ना करे। फिर जब गुरुजी का मैसेज आया कि 10 दिन दिया, फिर दिल नहीं करदा वो काम करन दा। तो मैंने रियलाइज़ किया कि अरे हाँ, ये तो ऐसा तो हुआ, क्योंकि मैं तो ये सोच रही थी कि मैं तो कुकिंग कोर्सेज करती हूँ और मुझे इतना शौक़ है, फिर मेरा कुकिंग कोर्सेज में जाने से मन ऊब क्यों गया, दिल नहीं कर रहा, ये वो।
तो बड़ी अजीब सी बात है संगत जी, बट नज़र जो है वो लगती है। और हालांकि गुरुजी तो हमें वहमों से निकालने के लिए आए हैं, और पहले मैं इन सब चीज़ों को वहम समझा करती थी कि ये हमारा वहम है कि नज़र लगती है। हालांकि आप भी कभी कभी थक जाते हो कि जितने हिसाब से बातें फैलाई जाती हैं, कि मेरी ज़िंदगी की यूएसपी यानी कि मेन लाइफ लाइन जो पंच लाइन है वो यही रही है कि कोई भी चीज़ शुरुआत, क्योंकि शुरुआत तो आपने अपने घर पे ही करनी है, वो चीज़ें ऐसे फैलाई जाती हैं कि और हमने कभी अपने घर से बाहर जाकर नहीं देखा, तो इसलिए मेरे को ये भी नहीं समझ में आता कि बाहर भी ऐसे ही हो रहा है। हमको लगता है कि ऐसे ही होता है, बट नहीं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी की ज़िंदगी में आने के बाद जो है मैंने थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने की कोशिश की है। अपने आप को, जैसे गुरुजी मुझे बहुत क्लियरली मैसेजेस कि सारियां गल्लां दसन दी कोई लोड़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अब उनके अनुसार और मुझे बता भी देते हैं कि क्या क्या बताना है, नहीं बताना। तो फिर मैं नहीं बताती। और अब यहाँ पे इन पर्टिकुलर मैं इस बुक की बात कर रही थी जो मैंने लिखना शुरू किया। तो फिर मैंने सडनली मुझे याद आया कि जब मुझसे पूछा गया क्या लिख रही है, तो फिर मैंने बोला कि मैं तो गुरुजी का सत्संग लिख रही हूँ। तो इस तरीके से कर करके 2-3 दिन मैंने यही बोलती रही। फिर मेरे को बोला गया कि तो सत्संग तो वैसे ही बहुत अच्छा सुना देती है, लिखने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरे को सत्संग के बहुत सारे पॉइंट्स भूल जाते हैं, इसलिए मैं सत्संग लिख रही हूँ। फिर मैं वो अपना रजिस्टर जिसमें मैं बुक लिख रही थी वो मैं छुपा के आती थी ऑफिस, और बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे करनी पड़े ताकि पीछे से देख ना लिया जाए कि मैं क्या लिख रही हूँ करते कराते। बट ठीक है, गुरुजी की मेहर थी तो बात इतनी निकली नहीं। तो और गुरुजी ने मुझे एक्चुअली आँखों के सामने दिखा दिया कि दुनिया होती क्या है और प्रिटेंड क्या करती है। तो मैं ये अब देखो, ये गुरुजी आपको गुरु का काम वो बाखूबी निभाते हैं, वो ईश्वर हैं, भगवान है। ये आपकी लाइफ की बड़ी, कायदे से देखा जाए तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बट नहीं, मैं इन सब के लिए प्रेजेंट नहीं थी। अब हम उन टाइम्स में रह रहे हैं कि हमारे सामने रूबरू ईश्वर है, वो हमारे को हाथ पकड़े हुए है और हमें समझा देते हैं, सब कुछ हमें बता देते हैं। वरना कहाँ कौन आपको समझाएगा। मैं तो अकेली ही रही हूँ। और अगर ऐसे देखा जाए कि ये आपके अपने तो ऐसे हैं, तो आप तो सबके होते हुए भी अकेले हैं। और मैं तो वैसे भी दिल्ली में अकेली ही रहती हूँ, तो मतलब ऐसी सिचुएशंस में गुरुजी का मार्गदर्शन जो है वो बहुत ही मायने रखता है। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी इन सब चीज़ों के लिए। तो समझ देने के लिए, सूझबूझ देने के लिए, अपने आप को इतना संजो कर रखने के लिए कि आप बिना मतलब के ना लोग आपको बिखार दें, इधर उधर बिखेर दें, और आप अपना ही जो है वो अस्तित्व भूल जाओ। जो कि मैंने रियलाइज़ नहीं किया, बट ये होता आया है, शुरू से बहुत होता आया है। तो और गुरुजी की, देखो गुरुजी महाशिव हैं, तो ठीक है, हमें गाइडेंस कैसे मिलनी चाहिए, पर गुरुजी को अगर गाइड करना है तो उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। पर ये कि वो हमें अपनी गाइडेंस के काबिल समझते हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿੰਨੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਮੈजिक ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਭੈਣ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ 2 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੂਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਅਸੀਂ 2:30 ਵਜੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਿਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਫੇਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਓਮ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਮੇਰੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਥੱਕ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं बचपन से शिव जी की भक्त रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी सूरत गुजरात से मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का टेलीपैथी आज 18 मार्च मंगलवार, गुरु जी ने पहले भी बताया है, मंगलवार को
शुक्राना सत्संग शेयर करने वालों को मंगलमय, सब मंगलमय होता है। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी का टेलीपैथी था कि बेटी बचपन से ही तू दुखी हो रही है, दुख के सिवा कुछ नहीं देखा है। बेटी आप नहीं जानती, मैंने बचपन से ही तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जिसके साथ जिसने आपको रुलाया है उनके सामने हंसना है बेटी। गुरुजी की मेहर अभी आपके ऊपर हो गई है। मेरे सत्संग शेयर करने वाले सुमन आंटी जी और उनके परिवार पर भी गुरुजी ऐसे ही मेहर बरसाई रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे संगत जी, सत्संग सुनने वाले मेरे संगत जी पर भी ये मेहर बरसाना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है, मेरा दूसरा सत्संग है और टेलीपैथी से गुरुजी ने कहा है कि डुंगरी मंदिर से तुझे संदेश दे रहा हूँ कि तुझे बहुत बड़ा कष्ट से बचाया है, तेरा कष्ट आने से पहले ही मैंने काट लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शी है। मैं अमृत वेले में गुरुजी को मेरे कष्ट के अरदास करती रहती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बताया कि तेरी अरदास सचखंड तक पहुँच गई है बेटी। और मेरे आँखों की रोशनी थोड़ी झांकी हो गई थी, तो गुरुजी ने ये भी बताया कि आँखों की रोशनी में लौटा रहा हूँ, विश्वास रख, तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मेरा दूसरा सत्संग है गुरुजी। जैसे कि मेरे सोसाइटी में 500-700 घर की बहुत बड़ी सोसाइटी है। गुरुजी मेरी सोसाइटी में, मेरे बगीचे में जो कचरा निकलता है वो मैं बाहर वो इकट्ठा करके रखती हूँ। तो जैसे कि दो साल पहले वैसे मैं साफ सफाई करके बाहर रखती थी, तो वो यहाँ पे 10-12 बहनें जो सफाई काम वाली है वो जो रास्ता साफ करती है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह से ये कचरा हम नहीं ले जाएंगे, जो ट्रैक्टर वाला आएगा तो भर कर रखो और उनको बोलना, वो ले जाएंगे। 2 साल के पहले ऐसे बोलते थे, लेकिन गुरुपा ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, जब से मुझे उनकी संगत बनाया है, गुरुजी ने कहा है कि तू मेरे डायरेक्ट कनेक्शन तुझे दिया है। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। तो इस तरह से जैसे ही मैं कचरा इकट्ठा करके अभी होली से पहले मैंने सब साफ सफाई की, तो उसके बाद मैंने सब कचरा भर के रखा था। तो जो बहनें आई तो वो बहनें वो भरा हुआ कचरा वो खुद ले गई। देखो मेरे गुरुजी की मेहर, देखो मेरे गुरुजी का आशीर्वाद कि गुरुजी के आने के बाद मेरे पूरा जीवन में बहुत बदलाव आया है। मेरे अंदर जो बीमारी थी वो कैसे दूर हो गई वो मुझे नहीं पता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मुझे जो आर्थराइटिस है तो उसकी वजह से मुझे काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन गुरुजी ने इतनी शक्ति दी है कि पूरे मेरे बंगलोज में कोई काम वाली बाई नहीं रखी है, मैं पूरा काम करती हूँ। सब बहनें आसपास की 2-2 नौकर रखे हुए हैं, 2-2 काम वाली बाई आती है। सब बोलते हैं मुझे कि कैसे आप काम करती हो, हमारे घर में तो 3 काम वाले आते हैं। दूसरी बोलती है 2 आती है मेरे घर पे। तो जैसे कि सब ऐसे मेरे में नज़र रखती है ऐसे। तो मैंने बोला कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, तो पूरे दिन में क्या करूँगी, मैं अकेली हूँ, तो फिर मैं काम कर लेती हूँ। सुबह में मेरे चाय नाश्ता और टिफ़िन दोनों हो जाते हैं, तो फ्री रह के मैं क्या करूँगी, मेरे हाथ पैर थोड़ा चले, अच्छे से काम कर सकूँ। तो इसके लिए, क्योंकि मैं पहले टीचर थी, तो मैं जल्दी उठ के सब काम करके मैं स्कूल जाती थी। गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी है। पहले 6 महीने तक जब रहने आई यहाँ, तो 6 महीने तो 5 बजे तक मेरा काम नहीं निपटा रही थी। लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे सितंबर के लास्ट वीक में मुझे 2024 में जोड़ा, उसके बाद गुरुजी ने मेरे पर बहुत मेहर की, बहुत आशीर्वाद दिए हैं कि मैं पूरा काम कर सकती हूँ। मैं पहले बहुत गुस्सा करती थी, मैं मेरे छोटी बहनों को भी मारती थी, बस ऐसे गुस्सा आ जाता था। लेकिन आज वो गुस्सा
आता है, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं आता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा मेरा सत्संग ये है कि होली के दिन हम मेरे ससुराल गए थे, तो मेरे ससुराल में 20 साल बाद मेरे काका ससुर के घर एक बेबी बॉय हुआ है। तो बेबी बॉय का होली पूजन होता है हमारे में, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ भी हम बहुत अच्छे से गए। यहाँ से हम बस में गए थे, तो गुरुजी मेरे साथ अंग संग थे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सब जगह ब्लेसिंग किया। जो हमारे डिवाइन नंबर से 77553333668888 ऐसे डिवाइन नंबर से ब्लेसिंग दी, वो हमारे अंग संग रहे। पूरा होली के दिन गए और मुझे आने का रास्ता, मेरा जाने का जो समय होता है 7-8 आवर्स होता है। तो बस शांति से गए, शांति से सब अच्छे से हुआ। होली के दिन जब उसकी पूजा विधि की, उसके बाद सब घर पे आए, सब ने इकट्ठा होके 35 जन थे हम, सब ने अच्छे से नाच गान किया, अच्छे से उसकी सब साथ में इकट्ठे हुए, बैठे और बहुत एंजॉय किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही मेहर हमारे पर बनाए रखना, हमारे बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि देना, हमारे बच्चों पर जो भी कष्ट आया है, जो भी बीमारी आई है, उसको दूर करना, उसके ऊपर भी मेहर रखना। मेरे दोनों बेटों के अंग संग रहना, उनके ऊपर हमेशा आपके चरणों में जगह देना, आपका संगत बनाना और हमेशा अच्छा काम करके आगे बढ़े, ऐसा आशीर्वाद देना। वैसे ही हमारे सत्संग सुनने वाले और संगत जी को भी ऐसे कष्ट दूर करना, उनको भी ब्लेस करना। और मेरे सुमन आंटी जी को, उनके परिवार को, उनके परिवार पर जो भी कष्ट आए उसे दूर करना, उनके ऊपर आपकी हमेशा बनी रहे। जो हमारे ऐसे दुख दर्द भरे अच्छे सब सुख दुख वाले जो भी हम सत्संग शेयर करते हैं, शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, वो सबको वो शेयर करते हैं। और आपने जो भी उसको ये शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे सत्संग करते हुए मुझसे जो भी गलती हो जाए तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना, मेरी सुमन आंटी जी मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मैं मेरे सत्संग शुक्राना को विराम देती हूँ और महामंत्र हमारे महाशिव महाकाल बाबा का जो है वो मंत्र जाप करके समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।